बच्चों कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? ठीक है, वेरी गुड। सब घरों में पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है। आज भी हम अपनी इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस जारी करेंगे जैसे कि हम हर बार करते हैं। और आज मैं आपको बीच में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी भी सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो मेरे साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नर्सरी के बच्चों की इंग्लिश क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक इंग्लिश क्लास फॉर माय नर्सरी स्टूडेंट्स, ओके। और बीच में इन द midway I will be telling you a beautiful story also which you will be enjoying, okay. So let us move and teach further. In the last class for my nursery students I taught them till the letter R. We will move further. See which alphabet is this? This is S. This is S, okay. To make S, first you have to make a small half circle, turn and again a half circle or a curve you can say, and this forms S. How do you pronounce S? Sa. Sa. Your tongue goes up when you say sa. And S. This is the alphabet S, okay. So S for all things come with the alphabet S. S for star, correct. S for this is sun, okay. And one more thing, S for silent. Silent. When you make noise, your teacher says you be silent. So this is silent. S. And S for one more thing which children love to eat, and that is sugar. What is this? This is sugar. So what all things come with S? S for star, S for sun, S for sugar, and S for silent. When you make noise, I say you children be silent, okay. So this is the alphabet S. What comes after S? Who knows what comes after S? Come on, let's move further and see what comes after S. After S comes T. To make T, you have to make a sleeping line like this and a standing line like this. A sleeping line like this and a standing line like this. This makes the alphabet T. What comes with T, children? T for tiger, ferocious animals. That is tiger, okay. Then what else? You love to watch it. You love to watch in your house. That is television. You see your good programs, entertaining programs, news in what? In television. So this is a television. Nowadays type of LCD and all televisions are coming. So T for television. And what else? T for table. T for table. And one more thing, T for tree. T for tea, okay. And what else? T for also a telephone. Previously most of the people used to have telephone in their house. Hello, you use telephone to call somebody, but nowadays people are using mobile phones, so usage of telephone has reduced nowadays. So T for table, T for television, T for tree, and T for also telephone. Is it correct, children? Are you able to understand? And this is the way to write a sleeping line and a standing line. A sleeping line and a standing line. Very easy, children, okay. And one more animal which is very slow and steady, whose story everybody has heard, that is T for tortoise also. T for tortoise also. So what all things come with T? You tell along with me.
T for television. Say T for television. T for tie. Okay, which your father ties when he goes to his office. That is T for tie. And one more thing which I forgot, children. This is T for a ripe red tomato. T for tomato also. T for television. T for tomato. T for table. T for telephone. And T for also tree. Okay. T for tree also. So we studied about S. We studied about T. What comes after S and T, children? After S comes T. After T comes U. You make your mouth ooh. The sound comes ooh, you. When you pronounce U. So let us see what all alphabets come with the alphabet E and what all words can we make with U. Okay, so we will see how to make a U. A standing line like this, a little curve and again one line like this. A standing line, a little curve and again one standing line upwards. This makes U. What is the word which are starting with the alphabet U? See, children, what is this? This is an umbrella. What is this? This is an umbrella. And umbrella is called chhata. Chhata in Hindi. Correct. Very correct. Then what else? This is a kind of urn. It's a kind of urn in which people used to keep flowers previously. That is called U-R-N, urn. This is urn and this is umbrella. Okay, and the person who holds the cricket matches, he is called umpire. What is he called? Umpire. Okay, so U for urn, U for umbrella and U for utensils. The basun, Banglate bola jai basun, which you use, that is called utensil. Okay, the plates, the dishes in which you eat are called utensils. So that also starts with the alphabet U. So what did we study today? S, T and U we studied today. Okay, children. So based on all the alphabets which I have taught you till today, I am giving you some home task, children, and this task will be for nursery children. All of you have to do it in your English copies. Very soon we hope to start the schools, and then I'll be seeing everybody's copies. Okay. So match. My first task which I am giving to nursery children is match. Those children who will study regularly will be doing very well even after the school opens after many days. Okay, so please keep on studying every day. You have to be very strong in studies. Very soon we will start the schools. See what I have given. This is my first task which I have given to nursery children. Match. A, you will match it with apple. M, match it with mango. K, match it with kite. S, with star, and U with umbrella. So this is the first task for nursery children. After that, I am giving you one more task because there was a strong storm in Bengal, due to which 2 days we couldn't conduct classes. So all that work has been left pending. So I am giving you a bit of more work today, children. You have to study more, okay? All of you have copied this now? Prithvi is copying? Okay, I am giving you another task.
called complete the line. Complete the line. G H I J C D E F E. What comes after E? You know, F G H J K L M and Q. I am giving you R S T. This work is for nursery students. Are you okay with it, children? Okay, very good. Now, after this, we will move to our Hindi class, which will be conducted by me itself. All of you will listen to me carefully. This work is here. You can copy it, children. Okay. अच्छा, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का नाम है ईद मुबारक। इस कहानी का नाम क्या है? ईद मुबारक। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था और उस गांव में एक छोटी सी लड़की थी, तकरीबन 6-7 वर्ष उसकी उम्र होगी, ठीक है। तो वो अपने अब्बू और अम्मी के साथ अपने गांव में रहा करती थी। मुस्लिम्स में एक प्रथा चलती है कि जब भी इनका ईद का त्योहार होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग अपने छोटों को या कोई भी बड़ा अपने से छोटे बच्चों को या किसी भी छोटे रिश्तेदार को कुछ पैसे देता है हाथ में, ठीक है। और ये ईद के दिन में ही होता है। तो ये जो छोटी सी रकम होती है, जिसकी जितनी औकात होती है, वो अपनी औकात के अनुसार देता है। तो ये जो पैसे, जैसे कि हम हिंदू लोग उसे सगुन बोलते हैं, तो मुस्लिम्स में उसे ईदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईदी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सलमा नाम की लड़की थी, उसे भी अपने अब्बू से हर साल अपने अब्बू से ईदी मिलती थी। किस दिन मिलती थी? ईद के दिन मिलती थी। तो सलमा इस बार अपने अब्बू के पास जाती है। रोज़े शुरू हो गए होते हैं। पहला रोज़ा जैसे ही शुरू होता है तो सलमा के मन में, दिमाग में बात आती है कि अरे रोज़े शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि 1 महीने के बाद ईद आएगी और ईद में मुझे फिर से ईदी मिलेगी। तो वो अपने अब्बू के पास जाती है और अब्बू से कहती है कि अब्बू 1 महीने के बाद तो जब रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो जाएंगे तो ईद आएगी, तो क्या आप इस वर्ष मुझे ईदी दोगे? तो अब्बू क्या बोलते हैं, हाँ बेटा ज़रूर दूंगा, वो तो तुम्हारा हक बनता है और मैं तुम्हें हर साल देता ही हूँ। सलमा बड़ी खुश होती है अपने मन में, और सलमा अपने मन में सोचती है कि इस बार जब उसे अपने अब्बू से ईदी मिलेगी ना, तो वो अपनी पसंद की एक सुंदर सी नई गुड़िया लेगी। उसकी बड़ी इच्छा थी एक गुड़िया लेने की। चलो फिर क्या होता है, सलमा अपने स्कूल पढ़ने जाती है, तो स्कूल में भी उसका ख्याल ईदी की तरफ होता है, ईद की तरफ उसका दिमाग ज़्यादा जाता है। तो यूँ कैलेंडर में देखती रहती है और अपनी उंगलियों में दिन गिनती है कि 5 दिन बीत गए, 25 दिन बाकी है, 10 दिन बीत गए, 20 दिन बाकी है। इस तरह से वो देखती रहती है और मन ही मन ऐसे ऐसे चुपचाप खुशी खुशी मुस्काती है। उसकी यह खुशी देखकर उसकी एक सहेली होती है रेशमा, वो उसे देखती है और बोलती है, क्या बात है सलमा, तू बड़ी खुश नजर आ रही है, तू क्या सोच रही है अपने मन में? तो सलमा बोलती है कि तुझे पता है कि कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है और मुझे मेरे अब्बू जो ईदी देंगे ना इस बार, मैं उस ईदी से अपने लिए एक सुंदर सी गुड़िया खरीदने वाली हूँ। तो रेशमा बोलती है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तब सलमा रेशमा से पूछती है कि क्या तुझे तेरे अब्बू ईदी देते हैं? तो बोलती है, हाँ देते हैं, लेकिन इस बार नहीं देंगे। तो वो पूछती है कि क्यों नहीं देंगे, क्या बात है कि तुझे ईदी नहीं मिलेगी?
तो रेशमा बड़े ही दुखी मन के साथ बोलती है कि उसके अब्बू कहीं शहर गए थे कमाई करने के लिए, कुछ काम करने के लिए गए थे। बहुत लंबा समय बीत गया, अब्बू की कोई खबर नहीं आ रही है और वो पूरा परिवार बड़ा दुखी है। तो सलमा का मन बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा ही दुखी हो जाता है और वो सोचती है कि कैसे उसकी सहेली रेशमा इतने दुख में रह लेती है। खैर जो भी हो, तो सलमा अपने घर आती है और धीरे धीरे ईद का दिन आ जाता है। जब ईद का दिन आता है तो सलमा अपनी माँ से कहती है, अम्मी अम्मी मैं भी आपकी मदद करूं पकवान बनाने में। तो उसकी अम्मी कहती, नहीं बेटा तू अभी बहुत छोटी है, तू बड़ी हो जा उसके बाद मेरी मदद करना। फिर क्या होता है, वही चीज जिसका सलमा को इंतजार होता है। सलमा के अब्बू उसे बुलाते हैं और बोलते हैं, सलमा इधर आ, जरा मेरी बात सुन। और बोलती है, जी अब्बू। उसके पिताजी उसे दे, ये ले तेरी ईदी, ईद की ईदी। वाह, सलमा कितनी खुश हो जाती है, उसे कितने दिनों से ईदी का इंतजार था। और जब उसे ईदी मिलती है तो उसके अब्बू बोलते हैं, चल सलमा अब हम बाजार जाते हैं और तू अपनी पसंद की गुड़िया खरीद लेना। तो बोलती है सलमा, ठीक है अब्बू। अपने पिताजी का हाथ पकड़ के वो बाजार जाती है। तो वो ईद का दिन होता है जब वो बाजार जाती है, तो देखती है चारों तरफ बाजार एक दुल्हन की तरह सजा हुआ होता है। सब लोग खुशियां मनाते हैं और नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं। ईद के दिन सबके घर मकान बाजार कितने सुंदर ढंग से सजे होते हैं। तो क्या होता है, सलमा एक गुड़िया की दुकान में जाती है और वहां पर एक उसे बहुत ही सुंदर सी गुड़िया दिखाई देती है। तो वो दुकानदार से कहती है, ये लीजिए पैसे जो उसे ईदी के पैसे मिले होते हैं, और कहती है कि मुझे वो सुंदर सी गुड़िया दे दीजिए। वो सुंदर सी गुड़िया लेती है और देखकर बहुत खुश होती है। इतने दिनों से उसका मन था इस गुड़िया को लेने का। वो गुड़िया खुशी 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 लेकर अपने घर आती है। जब वो अपने घर के अंदर जाती है तो शाम हो जाती है। देखती है सारे घरों के बाहर बहुत सुंदर सुंदर बत्तियां लगी हुई हैं, सब घर दुल्हनों की तरह सजे हुए हैं। सिर्फ एक घर ऐसा है जहाँ ना कोई बत्ती है ना कोई उजियाला है, सिर्फ अंधकार में एक घर डूबा हुआ होता है। और वो घर किसका होता है आपको पता है? वो घर रेशमा, उसकी सहेली का होता है। तो क्या होता है, सलमा अपनी सहेली के घर जाती है और वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी मजबूरी क्या है। हाँ, तो सलमा जो होती है अपने पिताजी के साथ ही उसके घर गई होती है और वो जाती है और जाकर बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, रुको, तुम इस साल उदास नहीं रहोगे। थोड़ी ही देर में सलमा अपनी अम्मी को लेकर आती है और वापस उसके अब्बू भी आते हैं। और इस बार जब उसकी अम्मी आती है और रेशमा दरवाज़ा खोलती है तो सलमा की अम्मी के हाथ में एक बड़ा सा थाल होता है जिसमें बहुत सारे पकवान होते हैं। और सलमा के अब्बू इनकी दादी के लिए, अम्मी के लिए और रेशमा के लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी लेकर आते हैं, पोशाकें लेकर आते हैं और वो इनके घर में जाके रख देते हैं। और सलमा के हाथ में वो वाली गुड़िया होती है जो उसने खरीदी होती है। तो वो बोलती है कि आओ रेशमा, आज हम लोग एक साथ मिलकर ईद मनाएंगे। तो वो सारे मिलकर एक साथ ईद मनाने लगते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और जो गुड़िया सलमा ने अपने लिए ली थी वो रेशमा को दे देती है। तो ये सारी चीज़ें सलमा की माँ देख रही होती है। उतने में ही सलमा के अब्बू की नज़र दीवार पर जाती है तो देखती है कि रेशमा के पिताजी की फोटो लगी होती है। बोलते, अरे ये तो इकबाल है, ये इसको तो मैं जानता हूँ, ये शहर में एक अस्पताल में भर्ती है और इसने अपनी याददाश्त खो दी है। बस फिर क्या था, रेशमा बहुत खुश होती है, बोलती अम्मी अम्मी अब्बू का पता चल गया। सारे लोग मिलकर शहर जाते हैं और इसके अब्बू को ले आते हैं, इकबाल को ले आते हैं। इनका कुछ दिन इलाज चलता है और इकबाल बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर सारे खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीख सीखी है बच्चों, जानते हो? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमेशा अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए,
चाहिए, हमें दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचना चाहिए। दूसरों को देखकर जो सुख महसूस होता है वो अपने लिए वो सुख महसूस नहीं होता है। इसलिए हर समय सिर्फ अपने लिए, मेरे लिए मत सोचो, दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत सारी खुशी मिलेगी और भगवान की बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी, तभी तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, है ना बच्चों? ठीक है, चलो ये हुई आज की कहानी, सबको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज हम फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपनी हिंदी की कक्षा को जारी रखते हैं। चलो सब मेरे साथ बोलो, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया। पढ़ा है हमने यहाँ तक, च छ ज झ इया। उसके बाद क्या आता है, ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ, फिर आता है अणा। फिर क्या आता है, अणा। उसके बाद भी हमने पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा है, त से तरबूज, त से बोलो तकिया, और त से ताला जो घर के दरवाजे पे लगता है, और त से तितली जिसे कि बंगला में क्या कहते हैं, बंगला में कहते हैं प्रजापति। क्या बोलते हैं, प्रजापति। फिर क्या होता है, थ से क्या होता है बच्चों, थ से थर्मस, थर्मस जिसमें पानी या दूध गर्म रहता है। थ से थैला, और थ से होता है थर्मामीटर। जब आप बीमार होते हो तो आप अपने मुंह में थर्मामीटर लगाकर अपना पारा मापते हो। थ के बाद क्या आता है द से क्या होता है, द से दरवाजा, द से दवात यानी स्याही, और द से दीप भी होता है। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि त थ द के बाद क्या आता है। द के बाद आता है ध, वर्ण ध। तो ध को कैसे लिखना है, इधर ध्यान से देखो बच्चों। ये है इस तरह से छोटा गोल बनाकर ऐसे मोड़ना, फिर ऐसे मोड़ना, और फिर यूं ऐसे कर देना। ये बना आपका ध। ध के ऊपर थोड़ा सा खाली स्थान रहता है। तो ध से क्या क्या होता है, ध से होता है धनुष। क्या होता है, ध से धनुष, तीर कमान वाला जो होता है ना, उसे बोलते हैं ध से धनुष। ठीक है, श्री रामचंद्र या पहले के जितने भी लोग थे वो पहले तीर कमान और धनुष का प्रयोग करते थे, इससे तीर अंदाजी की जाती थी, इसे बोलते हैं धनुष। और क्या होता है, ध से जो पैसा होता है आपके पास उसे बोलते हैं धन। धन, पैसे को क्या बोलते हैं, धन। और धागा, सूता, धागा, ध से धागा। तो बोलो, ध से धनुष, ध से धन, और ध से होता है धागा। ठीक है बच्चों। और फिर ध के बाद आता है न, ये हुआ न। ठीक है, तो न ऐसे सीधी रेखा, एक खड़ी रेखा, और यूं फिर एक लटा के और ऐसे एक गोल बनाना है। तो न से कौन सा फल होता है, न से होता है नाशपाती, न से होती है नाशपाती। और एक बहुत ही आसान सी चीज है, वो है नल, नल। ठीक है, तो ध से धनुष और न से नल। और एक और खट्टा सा फल होता है, उसे बोलते हैं नींबू। नींबू पानी पीते हो ना आप, तो उसे बोलते हैं नींबू। और क्या होता है, न से नमक भी होता है। नमक, जो सब्जी बनाने में किसी भी चीज में हम नमक डाल के बनाते हैं तो उसे बोलते हैं नमक। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, त थ द ध और न, इतना तक मेरे नर्सरी के बच्चे याद रखना। मैं इसके ऊपर आधारित कार्यक्रम या जो भी आगे की पढ़ाई होगी इसके ऊपर ही हमारी बेस्ड होगी। ठीक है, तो कल मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊंगी।
And now for the students of nursery, I am teaching you few poems. Say along with me. Ringa ringa roses, ringa ringa roses, pocket full of posies, pocket full of posies. Husha, husha, we all fall down. Okay, then there is one more poem. Mummy darling, Papa darling, I love you, I love you. See your baby dancing, see your baby dancing, just for you, just for you. Mummy darling, Papa darling, see your baby smiling, see your baby smiling, just for you, just for you. Are you reading at your home, children? Yes, you have to read also and you have to write also every day. Two little hands. The another rhyme is two little hands. Say, two little hands to clap, clap, clap. Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. One little head goes side to side. Okay? And two more poems, children. And then it will be over for you. Jack and Jill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jack fell down and broke his crown. And Jill came tumbling after. Jill came tumbling after. Okay, and one more, and that will be over for today. That is Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Couldn't put Humpty together again. Which poem else? For the KG students. For the KG students, I am reading some poems. Okay? So read along with me. Sparkling bluebells. Sparkling bluebells. In and out. In and out. The sparkling bluebells. In and out. The sparkling bluebells. In and out. The sparkling bluebells. I am the leader. Rap-a-tap, tap, tap. Rap-a-tap, tap, tap. On my shoulder. On my shoulder. Rap-a-tap, tap, tap. On my shoulder. I am the leader. I am the leader. This is for KG students. Okay. And one more. For KG students only. My mummy is the best. Say, my mummy is the best. My mummy is the best and loves me more than rest. And loves me more than rest. She cheers me when I am sad. She loves me when I am bad. My mummy is the best. I love her more than rest. My mummy is the best. I love her more than rest. And that is it for today's class, children. And before I leave, I'll be coming back tomorrow, children. And I hope that you all are taking good care of yourself and you're also taking bath every day. You have to be hygienic and you have to take care of your cleanliness. Please take your bath every day and sanitize your hands
regularly, and wash your hands before and after eating food. Even if you play somewhere in your house, you have to wash your hands regularly, because the fear of corona is still there, and we have to be very cautious, as well as we have to be very responsible. And till the next class I come, children, please be very careful and love you all. Take care of yourself. Bye bye.